So I request you all to please confirm, is my screen visible to everyone and I am loud and clear? Okay, so how is everyone? Everybody is doing well, fine? Must? Jackass? Okay, so let's do a quick recap of what we have covered in our previous session. So let's go back to our previous sessions folder. Could you get time to practice? Everybody's, ma'am, please share notes. Monali, it is already shared actually. I mean, I understood that maybe because I was sharing, there was some issue. So the mail has been sent to everybody. So please check your inbox. Okay, Monali? Can others please confirm? Did you receive the mail? मुझे mail नहीं मिला. Okay, so Monali, I request you to please DM to Sonal ma'am with your email ID and just tell her that you have not received the email. Is that fine? Because you can see others have received the email. So those who have not received, I request you to please DM to Sonal ma'am with your email ID and that you have not received the PHP notes. Is that fair enough? All right. So let's start with our today's session. We'll just do a quick recap. So earlier we had discussed that we have a login.html page. All right. So we create a form and then in the action attribute we specify login.php. That means one separate page for HTML, one separate page for PHP. So when you submit, then you are checking everything and then you are fetching the data and everything. बट नाउ व्हाट वी सेड नहीं, अभी मुझे एक ही पेज में दोनों चाहिए, मुझे HTML पेज भी उसी पेज पे चाहिए और जो कोड है वो भी इसी पेज में चाहिए. ओके, दैट इज माय रिक्वायरमेंट. Okay, so when we have this HTML page, what is our requirement? That this page should be visible when the user is making a first request. तो जैसे user first request, अगर page submit हुआ है, तो क्या होगा? uname की value set हो जाएगी. So we are using the isSet method. So isSet and you specify the particular variable name. अगर ये set है, मतलब page post हुआ है, तो you fetch the data, you perform all the operation. एल्स मतलब हमने पेज सबमिट नहीं किया है, तो एल्स पार्ट में देखो ओपनिंग ब्रैकेट है और ये पूरा का पूरा अपना HTML पेज है. सो इन वन सिंगल पेज ऑल द ऑपरेशन कैन बी डन. वी डोंट नीड टू क्रिएट सेपरेट पेजेस. सो बिफोर आई प्रोसीड, एवरीबडी ओके विद दिस पार्ट? ये हमने लास्ट सेशन में देखा था. एवरीबडी इज फाइन? Yes, then we started off with the array concept. So how to create array in PHP? We use array method and we specify. मैम ये वाला repeat करो. कौन सा वाला बेटा? गौरी? दोनों एक पेज में. ओके, सी आई हैव अ पेज. ओके, और उसका नाम है से लॉगिन डॉट HTML. राइट, इसमें हमने एक फॉर्म बनाया. सो फॉर्म मेथड इज इक्वल टू से पोस्ट एंड देन वी आर यूजिंग द एक्शन एट्रीब्यूट. सो एक्शन में मैंने क्या लिखा? लॉगिन डॉट PHP लिखा. एंड देन हियर वी हैव द फॉर्म कोड एंड एवरीथिंग. तो जब हम यहाँ पर जो सबमिट बटन है उसे हम प्रेस करते हैं, so what is going to happen? This data will get submitted to which page? It will get submitted to login.php. Fine. तो अब मुझे क्या करना होगा? I need to create another page or another file, we can say, that is login.php. Here we will be fetching the data, correct? And perform operation. Is that fine, Gauri? ये अपना ट्रेडिशनल मेथड था, शुरू में हमने यहीं से शुरुआत की थी. लेकिन अभी क्या हो रहा है, मुझे दो फाइल्स अलग अलग बनानी पड़ रही है. उसके बदले मैं चाहती हूँ आई वांट टू क्रिएट जस्ट वन फाइल.
So what I'm going to do is I'll create just one file, that is login.php, just one file. इस पेज में ये जो fetching the data वाला part है, this also I want, and I also want this part, ये भी यहाँ पे चाहिए. So everything I want in one single file, that is login.php, that is my requirement. ठीक है, ये हमें करना है, मीन्स ऑल द कोड वी वांट इन वन फाइल, राइट. तो ये कैसे पॉसिबल है? दोनों एक साथ रन होना चाहिए क्या? मीन्स ये भी रन होगा और ये भी रन होगा, ऐसे चाहिए अपने को? नो, वी वांट ईदर वन, राइट. या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए. तो वो कैसे करेंगे हम? तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, राइट. सो हियर आई हैव अ टेक्स्ट बॉक्स. लेट्स से द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स इज, इसका नाम हमने रखा है फॉर एग्जाम्पल यू नेम. सो हाउ डू यू फेच द यू नेम? आप कैसे फेच करते हो? $_post and here we are writing you name, correct है? This is how we are fetching the data. अगर मैंने सबमिट बटन को क्लिक किया तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी, बट अगर मैंने सबमिट को क्लिक नहीं किया है, आई हैव नॉट सबमिटेड द पेज, तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी. दिस पार्ट इज क्लियर? If I get the form, I type in the data and I hit the submit button. मतलब मैंने डेटा को फिलअप किया और सबमिट बटन को प्रेस किया, तो ही मेरा इंफॉर्मेशन सर्वर को जाएगा, तभी इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी. अभी मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं हमने सबमिट बटन पे क्लिक ही नहीं किया तो ये वैल्यू वहां पे नहीं जाएगी. सो वी आर यूजिंग इफ इज सेट मेथड. क्या ये वैल्यू सेट है क्या, ये हम लोग पूछ रहे हैं. सेट है मतलब जो पेज है वो सबमिट हुआ है. सबमिट हुआ है तभी होगा ना. तो अगर पेज सबमिट हो गया है तो मुझे कौन सा वाला कोड एग्जीक्यूट करना है? आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस कोड, करेक्ट. सो दिस इज द कोड दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड अगर पेज सबमिट हुआ है तो. ये बात समझ में आई? कैसे पता चला सबमिट हुआ है कि नहीं? वी आर जस्ट चेकिंग द वैल्यू फॉर यू नेम. अगर यू नेम की वैल्यू सेट हुई है, मीन्स आपने टाइप करके सबमिट किया है, तो ये सेट हो गया है. सेट हो गया है तो तुम फेच करो इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग करो. नहीं, समझो इसका आंसर फॉल्स आ गया. फॉल्स आ गया मतलब तुमने सबमिट नहीं किया है. सबमिट नहीं किया है तो क्या करना है मुझे? उसको पेज दिखा देना है. सो लेट्स लुक इट दिस वे कि हमने यहाँ पे चेक किया, मतलब मैं एज अ सर्वर हूँ, आई एम द सर्वर, राइट. सो आई एम द सर्वर एंड आई एम चेकिंग फॉर दिस इंफॉर्मेशन कि ये वैल्यू इज सेट है क्या. मेरे पास रिक्वेस्ट आई और मैंने देखा कि ये वैल्यू सेट नहीं है, सो इट इज नॉट सेट. सेट नहीं है तो मैंने क्या किया, यूजर को क्या दिखा दिया? HTML पेज दिखा दिया और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह हैं वो सब उसको दिखा दिए. अब यूजर इसको फिल इन करेगा और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, फिर से रिक्वेस्ट सर्वर को जाएगी. जब रिक्वेस्ट फिर से सर्वर को जाएगी तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इज सेट यस हो जाएगा. यस हो गया तो ये परफॉर्म करो ऑपरेशन. नाउ इज इट क्लियर? So we are applying the if else block to execute either one. That the basis will be this one. So everybody is clear? Else के बाद क्यों? Else के बाद एक मिनट. ये अपना if else का सिंटैक्स होता है, ठीक है गौरी? यहाँ पे हमने क्या बोला? एट दिस प्लेस आई वांट लॉजिक फॉर लॉगिन वेरिफिकेशन. ओके, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? HTML code for login
form. Are you clear with this? अब इसको जब हम PHP सिंटैक्स में डालेंगे तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, कैन आई से दिस इज दिस एंटायर थिंग, ये एक मिनट, हाँ, ये तो पूरी की पूरी चीज PHP है. डू यू एग्री? तो उसको हम कैसे लिखते हैं? वी पुट इन हियर, राइट? इज दैट फाइन? और फिर ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो PHP पार्ट. तो इसको भी मैं PHP सिंटैक्स के अंदर डालूंगी. अभी समझ में आ रहा है? अगर तुम इसको एल्स में नहीं लिखोगी तो क्या होगा? रुको, एल्स वाला हटा के भी दिखाती हूँ मैं. इफ यू डोंट पुट इन एल्स पार्ट ओवर हियर, तो कंडीशन हट गया ना, तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग इट विल गेट एग्जीक्यूटेड. क्या नाम है तुम्हारे सेशन का? फोल्डर php_session3. ओके, नाउ आई एंटर द यूजर आईडी एंड पासवर्ड. तो ये देखो सक्सेस भी आ रहा है और ये पेज भी दिख रहा है ना मुझे. एल्स हट गया ना, तो वो दो जो चीज एल्स पार्ट में नहीं है वो कुछ भी होने तो वो रन होगा ही ना. आई एंटर द रॉन्ग यूजर आईडी एंड पासवर्ड. फेल्ड के साथ भी ये दिख रहा है. ये मुझे नहीं दिखाना था इसलिए उसको एल्स में डाला था. इज दैट फाइन नाउ? गॉट इट? सो लेट मी जस्ट रोल बैक द चेंजेस. यस. सो चलो आगे बढ़ते हैं. So we have array over here. So how to create an array? We use array method and we pass the desired data, right? So now dollar fruits has become an array. So how to see the information of the array? We use var underscore dump fruits. So it will display all the information of the array. We can also use the for loop. तो for loop आप आई की मदद से अगर लगाना चाहते हो तो $i=0, $i<3, $i++ एंड वी कैन यूज द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर. मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप $i यूज करके उसको फेच कर सकते हो. देन we can use heterogeneous set of elements. Usually the array definition says that it should be homogeneous elements, but in PHP we do not have any such restrictions. तो आपके कितने भी elements हो सकते हैं. ठीक है? So unordered list हमने लिया है and then we are displaying the information in the list format. Now we have the count method that will tell us how many elements are present in the array. So we can also apply the for each loop. For each fruits means this array as $x. तो इसमें क्या होगा? फ्रूट्स जो एरे है उसमें से एक एलिमेंट $x में आते जाएगा, आप उसको फेच कर सकते हो. If you want to modify the element, then you can write fruits square bracket 1 is equal to welcome. मतलब ये एप्पल जो है वो वेलकम से रिप्लेस हो जाएगा. Now, if you want to insert a new element at the end, we can use array underscore push. So, array underscore push को first parameter array चाहिए होता है और बाकी आप एक element या एक से ज़्यादा elements push कर सकते हो. So, all these elements will be added at the end of the given array. Right? Everybody is fine with this? Now coming to the associative array. So as I told you already कि Python के बच्चे डिक्शनरी से इसको मैप कर सकते हैं. So we have a kind of key value pair. So this is key, this is value. So array here, instead of having the index as 0, 1, 2, 3, we can specify the index as say SID. SID is equal to 101, S name is equal to Sanjay, percentage is equal to 80. So this type of an array is known as an associative array. So how to fetch the data from an associative array? You can apply the for each loop. जब आप for each loop लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? की और वैल्यू दोनों मिलेगा. सो की इम्प्लाइज वैल्यू, ऐसा सिंटैक्स यूज करना है.
So in X you will get SID, in Y you will get 101. So that is how you will be getting the elements. Fair enough everyone? यहाँ तक clear है? Okay, after this we started off with I think so इसके बाद ही हमने object oriented programming start कर दिया था. So we discussed the concept of object oriented programming, like object is something which has state, behavior, identity and responsibility. State means values associated with attributes. Behavior is the operation, the methods that the object is going to perform. Identity is the unique ID associated with the object, and responsibility is overall purpose, overall role of the object in the given domain. So these are the important characteristics of object. And then there are some principles of object oriented programming, that is abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. So what is abstraction? Selective ignorance. किसी एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बट हमें एप्लीकेशन में सब कुछ नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव द क्लास स्टूडेंट. मेरे लिए फिलहाल क्या जरूरी है? स्टूडेंट आईडी जरूरी है, स्टूडेंट नेम जरूरी है, परसेंटेज जरूरी है. बाकी उसका लोकेशन क्या है, उसका हॉबीज क्या है, ये सब मुझे नहीं चाहिए. सो आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट पार्ट एंड आई एम कंसिडरिंग द वंस दैट इज रेलेवेंट फॉर मी. Using that, we go ahead and create the class student. We have these attributes that will contribute to the state of the object, right? So, how to create the object? $stud is equal to new. Using the class name, we can create the object. After that, we also saw the concept of constructor. So, what is the purpose of constructor? अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो क्या होगा? एस आई डी, एस नेम, परसेंटेज अपने आप इनिशियलाइज नहीं होगा, हमें उसको एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना. सो इफ यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर इट विल डू द ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन. तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है. कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड which is used to initialize the object. It is called automatically when object is created. So that is the idea behind a constructor. So how to create a constructor in PHP? We have underscore underscore construct method. We may create a constructor without parameters or with parameters. Both are allowed, right? तो यहाँ पे $id ये सब हमने लिया. Now, whenever you are referring to the different elements, we have to use this. So this arrow SID is equal to ID, this arrow SName is equal to name, this arrow percentage is equal to percentage. That is how we initialize the members of the class. And then I have created one display method to display the information over here. इसको फिलहाल के लिए समझो हमने इग्नोर मारा. So $stud is equal to new student and we are passing SID, SName, percentage. या समझो एक मिनट. Let's say I am passing some hard coded information here, that is 101 Anika and percentage is 67. So I'm just passing some information that will go to the constructor for the initialization and then we are having the display method. तो ये कौन सा है? student underscore one dot php. Student underscore one dot php. So this is the information that we have specified. All right, everybody. तो class और object समझ में आया? What is class? Class is the blueprint for the object. It is the template for the object. It is the guideline that helps us to understand how the object is going to behave. Fair enough? कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका ब्लूप्रिंट होता है ना. So that is a class. I generally take example of पिज्जा हट ले लो या डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स ले लो. ये सब कहीं पे भी होंगे, आप कोई भी इंडिया के किसी भी प्लेस पे चले जाओ. व्हेन यू एंटर इनटू मैकडोनल्ड्स, द ओवरऑल, कैन यू से द
मीन्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम. वो एक्सपीरियंस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. डू यू ऑल एग्री विद मी? दैट्स बिकॉज देयर क्लास इज सेम. ये सब एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं. इसलिए उनका जो ओवरऑल सब कुछ रहता है, अपीयरेंस बोलो या इंटीरियर्स भी बहुत हद तक वो लोग सेम मेंटेन करते हैं, और उनका मेनू वगैरह सब कुछ सेम है ना. सो दे फॉलो द सेम गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. सो दैट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. देन फॉर फेचिंग द डेटा, मतलब यहाँ पे एस आई डी एस नेम परसेंटेज के लिए हमने स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल बनाया था. वी एक्सेप्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर एंड वी यूज्ड इट ओवर हियर. Then we went ahead and created another class, that is student class तो हम बना चुके हैं. और क्या था? Time. Yes. So we created the time class. So time class set time method, हाँ ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तब का है. So set time method हमने यूज किया है to set और initialize the time information. तो जब आप टाइम का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप set time मेथड को यूज करोगे for display and set time. So this is what we had covered in our previous session. So before I proceed further, can I get a confirmation from everyone? Everyone is fine till this point? यहाँ तक सबको ओके है? ओके मैम, लाइन नंबर 19. 19 में क्या? लाइन नंबर 19 बताओ. ओके ओके, 1 मिनट. हाँ, यहाँ पे लाइन नंबर 19 के जस्ट ऊपर 18 लाइन नंबर में यहाँ पे क्या हो रहा है? द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड. करेक्ट प्राची? अभी एक नया ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे. अब उसके जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे कौन सा मेथड बनाया है? सेट टाइम मेथड. सेट टाइम मेथड को हम क्या पास कर रहे हैं? आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स पास कर रहे हैं. सो वी आर कॉलिंग द सेट टाइम मेथड एंड वी आर पासिंग द इंफॉर्मेशन 10, 20 एंड 30. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस इज गोइंग टू कॉल दिस मेथड, जिसमें एच जो है वो एच आर को असाइन हो रहा है, एम जो है वो मिनट को असाइन हो रहा है, एस जो है वो सेकंड को असाइन हो रहा है. सो दिस इज हाउ द असाइनमेंट इज हैपनिंग हियर. एंड फाइनली वी आर कॉलिंग द डिस्प्ले मेथड. तो डिस्प्ले क्या करेगा? सब कुछ अच्छी तरीके से डिस्प्ले कर देगा. इज इट ओके प्राची? यस. नाउ लेट्स गो ahead and I'll be creating a new folder for today's session. All right, so now we have seen, till now we have seen abstraction and encapsulation. We have seen how to bind the state and the behavior into one unit. Now we will move forward towards the next concept, that is inheritance. Now what is inheritance? So we take a classic example that we have some car. Okay, so we have these different objects from our real life scenario. We have car, we have bike, we have bus, we have truck. What is common in them? Is there something in common among all of them? They have brakes, they are all vehicles, right? So they are all basically vehicles. So we have a parent class over here, that is our vehicle. And now what do we say? That these classes or these objects are derived or are created
from our parent class. ठीक है? So now what can I say? Can I say car is vehicle plus something extra? Bike is a vehicle plus something extra. Bus is a vehicle plus something extra. Truck is a vehicle plus something extra. So now we call this as is a relationship, right? So this unit that you observe here, यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा है, इसे हम कहते हैं derived class या फिर चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास. These are the terminologies we use. And vehicle that you observe here, that will be termed as a base class, parent class, super class. Fair? Fair enough, everyone? So I'm not going into too much of explanation because I have a lot of content to cover here, but I assume that most of you are familiar with the inheritance concept. Is there anybody who is not able to understand anything at till this point? सबको समझ में आ रहा है क्या डिस्कशन चल रहा है? We are talking about inheritance. I just did a small recap that when you are creating a class which is using, so basically the purpose of inheritance is inheritance promotes code reusability. करेक्ट. सो मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है, इट इज टू रीयूज. बार बार हम उन चीजों को क्यों लिखें जब वो ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है? तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको रीयूज करते चले जाएंगे. ठीक है, दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हियर. नाउ लेट्स मूव फर्दर and now we are going to see how it is implemented, right? So let's have a hierarchy over here that we are going to implement. So we will have an employee class. Okay, and for the employee class, the attributes we will have is EID, ename and basic. And here we will have the programmer class. So now if I talk about any organization, so I can simply say yes, a programmer is an employee, a sales manager is an employee, admin is an employee. So do you clearly observe the is a relationship? So let me have the diagram in place over here. Actually, it has to be a filled triangle. So everybody is able to relate with this example. सबको समझ में आ रहा है ये example? हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, ये बेस क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक लेने वाले हैं. एंड देन वी विल हैव प्रोग्रामर, सेल्स मैनेजर एंड एडमिन. तो प्रोग्रामर में हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा आवर्स, कॉस्ट पर आवर्स. और सेल्स मैनेजर में आ जाएगा इंसेंटिव. एडमिन में आ जाएगा से कमीशन. समथिंग लाइक दिस. ओके, तो जस्ट थोड़ा सा उसमें वेरिएशन ऐड कर दिया. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. फेयर इनफ एवरीबॉडी? Okay, so first of all I'm going to have our employee.php. So class employee. Okay, there are before I proceed further, let me also cover one more concept, that is access modifiers.
नाउ व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स? हमने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए. ओके, सो लेट्स से आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल $a, $b, $c. ठीक है. अब इसको मैंने एक एक्सेस मॉडिफायर दिया है दैट इज प्राइवेट. इसको हमने एक एक्सेस मॉडिफायर दिया है दैट इज प्रोटेक्टेड. और इसको हमने एक एक्सेस मॉडिफायर दिया है दैट इज पब्लिक. तो जब हम ये वेरिएबल्स बनाते हैं किसी एक क्लास में, सो लेट्स से दिस इज अ क्लास ए फॉर एग्जांपल. अब इस क्लास से मैंने एक दूसरा क्लास बनाया. मींस आई हैव इनहेरिटेड a class and I have created class B over here. तो इस B क्लास में इन ए बी सी में से क्या क्या मुझे अवेलेबल हो जाएगा. एक्सेस मॉडिफायर मतलब मैं किसको किसको एक्सेस कर पाऊंगी, किसको किसको मैं चेंज कर पाऊंगी, राइट. दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स. तो यहाँ पर हम किसको एक्सेस कर पाएंगे? इफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन मेंशन्ड एज प्राइवेट. प्राइवेट मीन्स जैसे हमारे पास हमारा कुछ प्राइवेट प्राइवेट मेरे पास क्या मेरा फोन है. सो आई से इट्स प्राइवेट. आई वोंट अलाउ एनीबडी टू यूज माय फोन. मैं नहीं चाहती कोई मेरा फोन देखे या यूज करे. सो आई से दिस इज प्राइवेट फॉर मी. इज इट ओके? प्रोटेक्टेड मतलब जो मैं भी यूज करूं और मुझसे इनहेरिट होने वाले क्लासेस भी यूज कर सके, दैट इज प्रोटेक्टेड. पब्लिक इज लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी, सबको मिलेगा. सो लेट मी जस्ट हैव अ वन लाइनर्स ओवर हियर. प्राइवेट, accessible only within the class in which it has been created. जिस क्लास में उसको बनाया गया है केवल वो वहीं पर एक्सेसिबल होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड. सो प्रोटेक्टेड इज accessible within the class in which it is created as well as in child classes. जितने भी चाइल्ड क्लासेस है उसमें भी वो इनहेरिट होकर जाएगा. नेक्स्ट इज पब्लिक. अवेलेबल एवरीवेयर. सब जगह पर वो अवेलेबल रहेगा. एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस. प्राइवेट मतलब जिस क्लास में आपने उसको बनाया है केवल वहीं पर यूज होगा, उसके बाहर कहीं पर भी उसको एक्सेस नहीं मिलेगा. प्रोटेक्टेड इस क्लास में भी मिलेगा और उससे डिराइव्ड होने वाली क्लासेस को भी मिलेगा. पब्लिक, पब्लिक इज एवरीवेयर इट इज अवेलेबल. ठीक है. तो इफ आई कम टू क्लास बी, तो क्लास बी में क्या हमें $a मिलेगा? आर वी गोइंग टू गेट $a? लेट मी जस्ट राइट ऑल ऑफ देम. कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग. तो ए बताओ क्या है? A is private. Is private data accessible outside the class? No. तो ये नहीं मिलेगा because it is private. What about B? B is protected. तो child class में मिलेगा? Yes. So it is available. Public? Public तो public है, हर जगह मिलेगा. So it is available. Now let's say I have another class that is class C, जो ना कि इनहेरिट हुआ है ना ही उसका इससे कोई भी नाता नहीं है. And now we are discussing $A, $B, $C. तो अभी देखो, if something is private in a particular class, it is accessible outside any class. उस क्लास के बाहर नहीं. Now come to protected. Protected में हमने क्या लिखा? Accessible within the class in which it is created as well as in the child class. सिर्फ कहाँ मिलेगा वो?
चाइल्ड क्लास में मिलेगा। ये वाली क्लास इसकी चाइल्ड क्लास है क्या, डिराइव हो रहा है क्या, नो, सो इट इज नॉट एक्सेसिबल। देन व्हाट इज अवेलेबल, ओनली सी इज अवेलेबल। I hope everybody is able to understand these three access modifiers. Okay, so now I'm going to have the data members as private. So private dollar $eid, private dollar ename, private dollar basic. And I would like to have a parameterized constructor. Tanuja, you are raising hand. Any issue, beta? Or is it a mistake? हेलो, मिस्टेक, ओके, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, बेसिक, yes. So we have just now created a class, that is employee class. We have created three variables which are all declared as private over here, and then we have the constructor where we have id, name and basic. We do the initialization inside the constructor, and I forgot this arrow because this is very much unique to PHP. So we tend to forget, right? सब जगह लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, बट पीएचपी में इट्स मैंडेटरी टू रेफर टू इट। ये नहीं लिखेंगे ना तो वो उसको फेच नहीं कर पाता। आई शो यू, आई रिमूव इट एंड शो यू। सो डॉलर E1 is equal to new employee dollar E1 arrow display, so emp.php, एक मिनट, हाँ, session php underscore session 4, php underscore session 4 private. Oh, by mistake I wrote private. Constructor must be public. Okay, so here we have created a object, and also we have done the initialization. Now what I was telling you, अगर मैं यहाँ पर ये this लिखना भूल जाऊं, suppose I forget writing this, then you will observe the output here. देख रहे हो, वो टच नहीं करेगा उस वेरिएबल्स को, बिकॉज इट विल कंसिडर दीज ऑल्सो एज सम लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने दिस नहीं लिखा, so it is telling me undefined variable, right? So it is pretty mandatory to use this arrow. yes, तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और इधर हमने थोड़ा सा रिपीटेशन देख लिया। एवरीबडी इज फाइन विद दिस? नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो कोड था हमारा, ये जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए था। ठीक है, सो आई डोंट नीड इट एनी फर्दर, सो आई जस्ट पुट इट इन अ कमेंट। ये मुझे अभी नहीं चाहिए, so I'm just putting a comment over here. Now I am going to create another file, that is programmer.php. Now
Now I want to create a class programmer which is inherited from employee. So first let's understand the syntax. So here we create a class programmer. Now how to do the inheritance? Here we use the extends keyword. Extends employee. This is how we write. तो प्रोग्रामर क्लास क्या हो गया? एम्प्लॉय से एक्सटेंड कर रहा है. इज दैट फाइन? सिंटैक्स इज क्लियर फॉर इनहेरिटेंस? एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड, राइट? पाइथन में आप कैसे करते हो? ब्रैकेट में एम्प्लॉय लिखते हो और सी प्लस प्लस में आप क्या लिखते हो? कोलन लिख के करते हो, है ना? सो हियर वी यूज द एक्सटेंड्स कीवर्ड फॉर परफॉर्मिंग द इनहेरिटेंस. अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो एम्प्लॉय क्लास है ये कहाँ पे है? इट इज प्रेजेंट इन एम्प्लॉय डॉट पीएचपी. लेकिन हम कहाँ पे हैं? वी आर इन अ डिफरेंट फाइल ऑल टुगेदर, दैट इज प्रोग्रामर डॉट पीएचपी. तो इसको और इसको लिंक कैसे करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू यूज समथिंग लाइक import, करेक्ट, import या include, ऐसा कुछ कैसे करेंगे हम? So what we have to do in PHP, so we use here include method. So include emp.php, that is to include that file over here. गेटर सेटर भी बना सकते हैं प्रतीक. यस, आई विल कम टू दैट पॉइंट. पहले गेटर सेटर करना है क्या? ओके, लेट मी यूज द गेटर सेटर कॉन्सेप्ट. 1 मिनट, एक सेकेंड रुको. लेट मी जस्ट सेव इट. Okay, students, please listen to me. Just now we created a class employee in which we have considered some private data members, that is EID, ename and basic, right? मैम यहाँ पैकेज होता है क्या? पैकेज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो पीएचपी में नहीं होता है बेटा. मतलब as far as I know, but I'll just cross check. मोस्टली मुझे जहाँ तक याद है कि नहीं होता है, बट एज आई सेड आई जस्ट क्रॉस चेक before I, give a confirmation. Let me just cross check. Yes. So we have created these private data members. What if I want to access the private data members from outside the class? So for that, we use the concept of getters and setters. So getters क्या करते हैं? Get करने के लिए यूज, मीन्स get, और we can say fetch data. और सेटर्स क्या करते हैं? सेटर्स को यूज करते हैं हम सेट करने के लिए, और वी कैन से मॉडिफाई डेटा. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द गेटर्स एंड सेटर्स कॉन्सेप्ट. तो जैसे यहाँ पे हमने प्राइवेट डेटा लिया था ई आई डी ई नेम, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं. सो लेट्स क्रिएट पब्लिक गेट ई आई डी फंक्शन, सॉरी, get eid. So what get eid is going to do? It will say return dollar this arrow eid. ये getter हो गया. ओके, ये गेटर्स हैं जिसके थ्रू हम प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर फेच कर सकते हैं. वी आर क्रिएटिंग पब्लिक मेथड्स फॉर दैट. सिमिलरली नाउ वी विल हैव सेट. सो सेट eid. So here I am passing dollar id. So dollar this arrow eid is equal to dollar id. So this is where we are modifying the value. Set कर रहे हैं हम.
Yes, everybody okay with the getter setter methods? मैम गेटर सेटर तो एवरी टाइम पब्लिक ही रखेंगे ना? हाँ बेटा, गेटर सेटर हमेशा पब्लिक चाहिए मोनाली, क्योंकि फंक्शन नहीं राइट करेंगे इन सेटर। हाँ सॉरी सॉरी, आई मिस्ड इट। आदत नहीं है ना, तो मिस हो जाता है वो। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। लिखना है, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे याद दिला दो, क्योंकि सी प्लस प्लस में भी नहीं लिखते हैं हम, पाइथन में भी नहीं लिखते हैं, है ना? तो वो इसलिए दिमाग में वो स्विच हो जाता है कभी कभी। यस मोनाली, मैं क्या बोल रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कीबोर्ड यूज करते हो, तो कीबोर्ड के जो एक्चुअल कीज होते हैं वो तो इट्स अ काइंड ऑफ सर्किट डायग्राम और अ चिप, बट वी डोंट टच द चिप, राइट? हम उसके ऊपर जो हमें कीज दिया हुआ है वो, सो द कीज आर लाइक द सेटर्स और द गेटर्स थ्रू विच आई एम एक्सेसिंग द कीज। यस, तो वो कीबोर्ड के जो कीज हैं वो तो मुझे बाहर दिखने चाहिए ना, तभी तो हम कीबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। अंडरस्टूड? तो यस, हमेशा हमको गेटर सेटर पब्लिक चाहिए, नहीं तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। ओके, सो हियर वी कैन write $E1 arrow set say e name to Aman, and then we can call the display method again. So if I go ahead and execute emp.php, you can see earlier it was Akshay, now it has been modified to Aman. अब समझो मुझे EID को मॉडिफाई करने का ऑप्शन देना ही नहीं है, सो जस्ट रिमूव द सेटर पार्ट ओवर हियर, क्योंकि आईडी एक बार बन गई तो बन गई ना, हम उसे चेंज नहीं करने देंगे। सो आई विल नॉट यूज द सेट आईडी फंक्शन एट ऑल। आप गेट कर सकते हो लेकिन आप सेट नहीं कर सकते। इज दैट फाइन? एवरीबडी इज ओके टिल दिस पॉइंट? यस, ठीक है, गेटर सेटर भी हो गया हमारा। नाउ मूविंग अहेड विद इनहेरिटेंस। नाउ वी आर इन द क्लास प्रोग्रामर। सो एज आई सेड फर्स्ट, इसको ये कमेंट कर दो, नहीं तो ये भी इंक्लूड होके ये भी रन हो जाएगा, राइट? सो जस्ट मेक श्योर दैट यू कमेंट दिस पार्ट और रिमूव इट, नहीं तो ये भी रन होगा, वो भी रन होगा। सो फर्स्ट वी आर इंक्लूडिंग this file emp.php, then we are creating a class programmer which extends employee. Ma'am, voice is not clear, Suraj is saying. Others, can you please confirm? Low. Okay, let me, yes, let me just leave the meeting and rejoin. Give me a second. Hello students, I am back. Can you please confirm? Am I loud and clear now? Better? So restart is always the best option, right? जिंदगी में कभी फंस जाओ. No, Suraj is still, it's still not clear. Fine. What is the problem? दबी दबी आवाज आ रही है, दबी दबी। मेरा तो मूड अच्छा ही है। ओके होल्ड ऑन, लेट मी चेक। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, सम पीपल आर सेइंग यस, सम पीपल आर सेइंग नो। सूरज को अभी भी नहीं आ रही आवाज ठीक से। इज इट फाइन नाउ, लाउड एंड क्लियर? दबी दबी।
Suraj, still same voice Suraj is saying. Purva is also saying no. It's not clear. हेडफोन्स पहन लो। हेडफोन तो पहना ही हुआ है बेटा। हेडफोन से ही लेती हूँ मैं क्लास रोज। तो निकालो। आपको नहीं मैम। हाँ मतलब देखो कुछ लोगों को क्लियर आ रही कुछ लोगों को नहीं। सो आई रिक्वेस्ट सूरज यू लीव द मीटिंग एंड रीजॉइन वंस। ओके जिसको भी योगिता आप भी मीटिंग लीव करके मनीषा एक बार लीव करके रीजॉइन करो। ठीक है एंड स्टिल इफ यू फेस प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। Yes, so some people are asking me to show the output of this program. Yes, निशिगंधा। ये देखो पहले हमने अक्षय नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था। बाद में हमने चेक किया और उसको चेंज किया अमन। सो वी सी अमन ओवर हियर। गॉट इट। Okay. Now coming to the programmer class. So first of all, I told you that if we have a class which is a separate file, we need to include that file. So how do we include? Include emp.php, right? Now we are creating a class programmer which extends employee. Okay. अब हमें क्या करना है जो मुझे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स चाहिए वो ऐड करना है। सो आई एम एडिंग प्राइवेट डॉलर कॉस्ट पर आवर्स। नाम इंक्लूड क्यों यूज किया है? देखो प्राची ये प्रोग्रामर डॉट पीएचपी फाइल है और हम प्रोग्रामर क्लास बना रहे हैं लेकिन हमें एक्सटेंड किसको करना है? एम्प्लॉय क्लास को। राइट। एम्प्लॉय क्लास इज प्रेजेंट इन एम्प्लॉय डॉट पीएचपी। तो दो अलग अलग फाइल्स है ना। हाउ डू वी कनेक्ट देम टुगेदर? जैसे पाइथन में आप इंपोर्ट यूज करते हो सिमिलरली यहाँ पर हमें इंक्लूड करना होता है। वी इंक्लूड दी अदर फाइल। तो जैसे पाइथन में इंपोर्ट होके आता है यहाँ पे इंक्लूड करने से वो फाइल इधर इंक्लूड हो जाती है। इज दैट फाइन? नहीं तो वो बोलेगा ना एम्प्लॉय क्या है। अगर ये लाइन आप नहीं लिखोगे तो लेट मी शो यू। So if I write here dollar p1 is equal to new programmer. So let me just save and execute this. अभी जिन्होंने रिज्वाइन किया अभी ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है क्लास एम्प्लॉय नॉट फाउंड। दैट इज द एरर वी आर गेटिंग। सूरज आ गया क्या वापस? ठीक है आवाज? अभी भी लो है बोलेगा। अंडरस्टूड। तो ये कनेक्ट कैसे करेंगे हम? सो वी इंक्लूड। गॉट इट प्राची? So we include the other file and now we are creating the class programmer which is inherited from employee class. Now it's time to go ahead and create the constructor. So here we are using public function underscore underscore construct. Now the question is, see here everybody, हमने क्या किया? हमने एक एम्प्लॉय क्लास लिया। पहले हम प्रोग्रामर को ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं। So here we have this employee class and then we have this programmer class. तो एम्प्लॉय में हमने क्या लिया है? एम्प्लॉय में ई आई डी ई नेम बेसिक लिया और प्रोग्रामर में हमने लिया एक्स्ट्रा आवर्स और कॉस्ट पर आवर्स लिया। ठीक है। तो अब जब हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय इज इनहेरिटेड फ्रॉम प्रोग्रामर वी आर सेइंग लाइक दिस करेक्ट। तो जो कुछ भी एम्प्लॉय में है वो सब कुछ प्रोग्रामर में इनहेरिट होकर आएगा। यस और नो?
whatever is present in the employee that is being inherited in the programmer. Yes. तो कोई प्रोग्रामर है, मेरे सामने कोई प्रोग्रामर खड़ा खड़ा है, उसके पास एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम बेसिक होगा या नहीं होगा? होगा, है ना? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस इट विल हैव दैट. So, when we create the object of programmer, जब हम प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस समय मेमोरी जो एलोकेट होगी वो किसको किसको होगी? एम्प्लॉय आईडी को होगी, एम्प्लॉय नेम को होगी, बेसिक को होगी, एक्स्ट्रा आवर्स को होगी और कॉस्ट पर आवर्स को भी होगी. डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये सब कुछ प्रोग्रामर में होना चाहिए क्योंकि वो प्रोग्रामर है जो इनहेरिट हुआ है एम्प्लॉय से. सो व्हाट इज प्रोग्रामर इन सिंपल वर्ड्स? कैन आई से प्रोग्रामर इज इक्वल टू एम्प्लॉय प्लस समथिंग एक्स्ट्रा. ऐसा हम कह सकते हैं. मतलब जितनी मेमोरी एम्प्लॉय को लग रही थी वो तो लगेगी ही, प्लस थोड़ा सा और उसमें ऐड हो गया, जैसे कि एक्स्ट्रा आवर्स, कॉस्ट पर आवर्स. तो एम्प्लॉय में क्या क्या था अपने पास? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक, ये तो तीनों चीजें थी ही. और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें ऐड हो गई, लाइक एक्स्ट्रा आवर्स एंड कॉस्ट पर आवर्स. फेयर इनफ? ओके. So, when we create the object of programmer and when we talk about the constructor, तो कंस्ट्रक्टर में अब मुझे दो नहीं, मुझे कितने पैरामीटर्स पास करने हैं? 5. लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इट. अगर मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग लाइक दिस, yes, can you please confirm now, is the voice problem resolved? Is it loud and clear now? Okay, cool. तो यहाँ पर हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है. Construct. So we have the constructor over here. Let's say I have passed only the information for extra cost per hours and extra hours. तो हमने क्या किया? हमने बोला प्रोग्रामर शुड इनहेरिट फ्रॉम एम्प्लॉय. तो प्रोग्रामर में जो कुछ भी है वो एम्प्लॉय से आ गया. उसके पास एक्स्ट्रा आवर्स, कॉस्ट पर आवर्स भी हमने ऐड किया. लेकिन हमने इनिशियलाइज किसको किया? सिर्फ कॉस्ट पर आवर्स, एक्स्ट्रा आवर्स. वी डिड नॉट फोकस ऑन द इनिशियलाइजेशन ऑफ द अदर मेथड्स. एंड नाउ लेट्स हैव हियर पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले PRG, ऐसा कुछ मैंने नाम लिखा. एंड इको so now when I create the object of programmer, I should pass only extra hours and cost per hours. So now when I say P1 arrow and I call the display PRG method, हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी राइट कर सकते, हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी राइट कर सकते हैं गौरी. एक मिनट. So now I am calling programmer.php. So please observe the output here. एक मिनट. एम्प्लॉय वाला कमेंट नहीं है क्या? हाँ, ये देखो, ये कमेंट नहीं किया था ना तो ये भी रन हो गया. हाँ, इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट दिस वन, otherwise the output becomes a bit confusing. Now you see the output. What are we able to observe? I got only extra hours and I got only cost per hours. अब अब हम क्या करेंगे? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कुछ भी प्रोग्राम, जो कुछ भी एम्प्लॉय में था वो इधर इनहेरिट हुआ है.
So what I can do is I can write here $p1 arrow and let me call the display method. Display method कहाँ लिखा हुआ है? It's coming from the employee class. So now if I try to run this, what do you observe? रन तो हो रहा है, डिस्प्ले मेथड कॉल तो हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी भी नहीं आया, नेम भी आया नहीं, बेसिक भी नहीं आया. क्यों नहीं आया? Why it is not showing up? वैल्यू इज नॉट सेट, दैट इज द रीजन. वेरी गुड. तो अब जैसा गौरी ने कहा, चलो हम एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट वन मोर कंस्ट्रक्टर, दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सो पब्लिक फंक्शन underscore construct, and just to explain a concept I am writing here echo I am base class default constructor. Okay, just I am writing this. In the employee class, I have a constructor where I have not passed any parameters. तो अगर आप parameters नहीं pass करोगे तो वो कहलाता है क्या? Default constructor. So now let me just execute this. Cannot redeclare this in employee line number 12. हाँ, शायद ना ये पाइथन जैसा है, इसमें कंस्ट्रक्टर दो दो बार हम नहीं लिख सकते. ओके, सो दिस इज सिमिलर टू पाइथन. सो प्लीज रिमेंबर, दोनों फंक्शन ओवरलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड इन PHP. ओके, प्लीज मेक अ नोट. ओके, बिकॉज इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. तो कोई भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है. वी कैन हैव ओनली वन ऑफ देम. सो दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, तो समझ में आया सबको? सो वी कैन नॉट हैव दैट ऑप्शन हियर. तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम बेसिक नहीं इनिशियलाइज हो रहा है. सो नाउ लेट मी जस्ट चेंज द स्ट्रेटेजी हियर. What I am going to do is, while creating the programmer, I will also specify the value for employee ID, employee name, basic, extra hours and cost per hours. ये सब कुछ मैं पास करती हूँ. So now let's use these as parameters here. So ID, name, डॉलर बेसिक, ये सब कुछ हम ले लेते हैं. नाउ ये जो इंफॉर्मेशन है, EID, ई नेम, बेसिक, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए? बेस क्लास में जानी चाहिए. मतलब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए. डू यू ऑल एग्री? पर वो खुद से तो कॉल होगा नहीं, है ना? सो वो खुद से तो कॉल होगा नहीं. यू कैन सी इट इज नॉट इनिशियलाइजिंग इट. वो खुद से नहीं कॉल होता है, हमें कॉल करना पड़ेगा. सो वी नीड टू एक्सप्लिसिटली call base class constructor. So how do we do that? We use parent keyword. Parent keyword है इधर. Parent colon construct underscore. So we use the parent keyword to refer to the parent class. तो parent लिखना है और बाद में double colon operator and then whatever method you intend to call. Just by writing this code, now you may observe the behavior here. ठीक है? Fair enough? सो प्लीज रिमेंबर, सुपर की आदत हो गई है हमें, तो यहाँ सुपर नहीं पेरेंट कीवर्ड यूज होगा. ठीक है?
टू रेफर टू द पेरेंट क्लास। और उसके बाद डॉट नहीं चाहिए, डबल कोलन चाहिए। मैम रिपीट करो ना एक बार। हाँ, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एम्प्लॉय क्लास है हमारे पास, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था, करेक्ट है। आईडी नेम बेसिक, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, है ना। और अभी हमने प्रोग्रामर बनाया विच वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम द एम्प्लॉय क्लास, और इसके अंदर भी हमने कंस्ट्रक्ट मेथड लिखा। और इस बार हमने यहाँ पे आईडी नेम बेसिक एक्स्ट्रा आवर्स और कॉस्ट पर आवर्स लिख दिया, ठीक है। सो वी हैव डिफाइंड दिस। गॉट इट। अब ये जो है चीजें, दैट इज एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम बेसिक, ये कहाँ जाना चाहिए? इट शुड कॉल द कंस्ट्रक्टर ओवर हियर, एग्रीड प्राची? तो वो कैसे कॉल करेंगे हम? उसके लिए कीवर्ड है पेरेंट, पेरेंट कोलन कोलन कंस्ट्रक्ट आईडी नेम बेसिक। जैसे पाइथन में अपन सुपर लिखते हैं ना, यहाँ पे याद है ना, अपन सुपर लिख के कॉल करते थे पेरेंट क्लास को, वैसा। नाउ क्लियर एवरीवन? So if everybody has understood till this point, can you please type U for understood in the chat box? Okay. So now when I call the display method, now the data has been initialized properly. So I get the output as display and display PRG. ठीक है, तो वो प्रॉपर अपने को आउटपुट आ गया। डिस्प्ले मेथड से एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम बेसिक मिल गया, एक्स्ट्रा आवर्स एंड कॉस्ट पर आवर्स आल्सो वी हैव ऑब्टेन्ड। फेयर इनफ। नाउ अगेन कमिंग बैक, यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास में हमने एक डिस्प्ले मेथड डिफाइन किया था, और हमने प्रोग्रामर के अंदर डिस्प्ले पीआरजी मेथड डिफाइन किया था, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो डिस्प्ले मेथड हमने यहाँ लिखा था वो इनहेरिट होकर यहाँ आएगा ही। सो व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोग्रामर P1, when I say arrow, I am able to call the display method and I am also able to call the display PRG method. Yes or no? दोनों भी इनहेरिट होके आ रहा है। What is the display method going to do for us? डिस्प्ले मेथड हमारे लिए क्या कर रहा है? Come on, what output do we get? It will display the EID ename basic. Perfect. And what is the display PRG method going to do for us? डिस्प्ले PRG मेथड क्या करेगा हमारे लिए? It will display the extra hours and cost per hours. Correct? दोनों ही काम क्या कर रहे हैं? डिस्प्ले। यस, दोनों ही जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं डिस्प्ले करने का कर रहे हैं ना, दोनों भी शो कर रहे हैं डेटा। सो अगर मैंने एक सेल्स मैनेजर का क्लास बनाया, एक मैंने एडमिन का क्लास बनाया, तब मुझे कौन सा मेथड लिखना पड़ेगा वहां पे? आई विल हैव टू क्रिएट डिस्प्ले सेल्स टू शो द सेल्स इंफॉर्मेशन। फिर मुझे डिस्प्ले एडमिन लिखना पड़ेगा एडमिन का डेटा शो करने के लिए। सो बार बार मुझे मेथड्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? So instead of thinking about a new method all the time, why not change the name of the method from these different names to display itself?
क्यों ना हम नाम सेम ही रख दें? डज दैट मेक सेंस? जैसे कि हमने वो कार वाला हायरार्की देखा था कि मेरे पास कार है, बस है, बाइक है, तो कार को भी हम लोग बोलते हैं चलो कार स्टार्ट करो, करेक्ट? विल ऑलवेज से कार को स्टार्ट करो, बस को स्टार्ट करो, बाइक को स्टार्ट करो, हर जगह हम लोग स्टार्ट ही बोलते हैं ना। डू वी से कार स्टार्ट, बस स्टार्ट, बाइक स्टार्ट, ऐसे नहीं बोलते ना। सो वी यूज द सेम टर्मिनोलॉजी. So every time I have to use the same terminology. So what are we going to do now is we have the employee class. एम्प्लॉय क्लास है यहाँ पे, और उसके अंदर हमने कौन सा मेथड लिखा है? डिस्प्ले लिखा है. अब हम प्रोग्रामर क्लास में जा रहे हैं, और प्रोग्रामर में जो डिस्प्ले पीआरजी लिखा था उसको बदल कर हम क्या लिख देंगे? डिस्प्ले लिख देंगे. तो दोनों भी जगह क्या मेथड नेम हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा. अंडरस्टूड? जस्ट वी आर ट्राइंग टू मेक द थिंग्स सिंपल. बार बार अलग अलग नाम सोचते बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे, है ना. सो जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द थिंग सिंपल आई एम यूजिंग द सेम टर्मिनोलॉजी. अब इससे होगा क्या? नाउ प्लीज फोकस हियर एवरीवन. यहाँ पर हमारे पास है डिस्प्ले मेथड, समझो. अगर मैंने प्रोग्रामर में डिस्प्ले मेथड बनाया ही नहीं, लेट्स से आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी मेथड इन द प्रोग्रामर, and now I am creating the object that is $p1 is equal to new programmer, and I am writing $p1 arrow, and I call the display method. So let me just name it as, say, इसको number 1 नाम दे देती हूँ मैं. All of you please focus here. एम्प्लॉय में मैंने डिस्प्ले मेथड बनाया, प्रोग्रामर में डिस्प्ले मेथड नहीं बनाया है. देयर इज नो डिस्प्ले मेथड हियर इन प्रोग्रामर. तो ऑब्वियसली दिस इज इनहेरिटेंस, तो ये इनहेरिट होकर तो आएगा ही. सो व्हेन आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोग्रामर एंड आई राइट p1 एरो डिस्प्ले, तो कौन सा वाला डिस्प्ले मेथड कॉल हो जाएगा? पेरेंट वाला. सो कैन आई से द आउटपुट फॉर दिस वन इज 1. एम्प्लॉय का डिस्प्ले कॉल होगा. एवरीवन एग्रीज विद दिस? नाउ कंसिडर अनदर सिनेरियो. चलो यहां से मैं इसको कट कर देती हूँ. I go to the programmer class and I add a display method here. हमने क्या किया? प्रोग्रामर में डिस्प्ले को ऐड किया, लेकिन एम्प्लॉय में से उसको हटा दिया. अब हम इसको नंबर दे देते हैं, लेट्स से 2. So if I write p1 arrow display, which method will be called? गौरी, बेस में से मैंने उसको उड़ा दिया है, बेस में नहीं है वो अभी. So it is not present in the base class, right? सिर्फ हमने प्रोग्रामर में डिस्प्ले मेथड को डिफाइन किया है, तो कौन सा वाला कॉल होगा? इस केस में नंबर 2 वाला कॉल हो जाएगा. Now let's have the display method here as well. तो ये इनहेरिट भी होगा. Now if you observe programmer, can I say in programmer 2 times the display method is supposed to be present? पेरेंट से भी उसको मिल रहा है और चाइल्ड से भी मिल रहा है. Yes. So if I call p1 arrow display, which method will be called? अब उसके पास चॉइस है 1 and 2. So which one will be called in this scenario? सेकेंड नंबर, राइट? जैसे कि तुम्हारे पास एक पेन है और तुम्हारे रूम में एक पेन है और तुम्हारे दूसरे रूम में भी एक पेन है, और मैं बोलूंगी पेन दे दो, तो जो तुम्हारे जस्ट सामने है वो तुम फटाक से उठा के दे सकते हो ना, रादर देन गोइंग एंड फेचिंग इट फ्रॉम द अनदर रूम. तो जो उसके क्लास के अंदर खुद है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाता है. सो द नियरेस्ट वन इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो विच वन विल बी कॉल्ड? द चाइल्ड क्लास मेथड विल बी कॉल्ड. दिस इज नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग. ठीक है?
This is function overriding concept. When same method is present in base as well as derived class, and when we call method using the object of child class, then child class method will be called. Not calling parent class method. This is called function overriding. फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं बेटा, फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने अभी बताया आपको, वो सपोर्ट ही नहीं करता है पीएचपी। वो ओवरराइट कर देगा पुराना डेफिनेशन को नए से। फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है वो बता रही हूँ मैं। डॉलर एक्स इज इक्वल टू 10, अगर मैंने डॉलर एक्स इज इक्वल टू 20 लिखा, so if I go ahead and print dollar x, what is the output? 20 ही रहेगा। तो वैसे ही कोई अगर तुमने फंक्शन यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल डेमो, चाहे वो पेरेंट क्लास में हो चाहे वो चाइल्ड क्लास में हो, अगर उसको तुम डेमो डॉलर एक्स डॉलर वाई से रिप्लेस कर दोगे, तो वो क्या करेगा, इस वाले डेफिनेशन को डिलीट कर देगा। What it will do, it will delete this definition and this will be the active one. Understood? Understood everyone? सबको समझ में आ रहा है? फंक्शन ओवरलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड इन पीएचपी बाय एनी मींस। वो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में लिखो कैसे भी लिखो, इट इज नॉट सपोर्टेड। ओनली एट अ टाइम वन मेथड विल बी अवेलेबल हियर, बट ओवरराइडिंग इज सपोर्टेड। मतलब आप पेरेंट क्लास में एक कॉपी, चाइल्ड क्लास में दूसरा कॉपी, ये रहेगा। दिस इज फाइन। इज इट क्लियर? एवरीबडी कैन यू प्लीज कंफर्म, इज इट क्लियर? तो अभी क्या होगा, जो मैंने बोला, तो मैं इसको थोड़ा सा एक अलग फाइल में करके दिखाती हूँ। सो लेट्स से डेमो डॉट पी एच पी। Students, just give me a minute. Huh? One emergency is there. 1 minute. I'll be back in a minute.
Yes, sorry for the interruption. I'm back here. Okay, so what I was trying to say is, suppose we have a function here, say demo echo I am demo method from base class. So now I am creating a derived class which is extends from base. Okay, and I am redefining the same method. अभी पहले मैं same method करके दिखा रही हूँ आपको. चलो एक मिनट, अभी यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं है. सो लेट्स से $d1 is equal to new. I am creating the object of derived so let's execute this. I hope you all are understanding here. We have the class base है और हमारे पास demo function है. Okay. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. अभी मैंने सिर्फ एक बेस क्लास लिया है, बेस में हमने डेमो बनाया और डेमो में क्लास डिराइव ले लिया है ना, और यहाँ कोई भी मेथड ऐड नहीं किया, मतलब पेरेंट में है चाइल्ड में नहीं है. और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आई एम डेमो मेथड फ्रॉम बेस क्लास ऐसा आउटपुट आ गया. ठीक है, अब हम इसको कट करते हैं एंड लेट्स हैव इट इन द डिराइव क्लास. तो पेरेंट में अभी नहीं है, सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डिराइव. और इसको अगर हमने रन किया तो अभी डिराइव से मैसेज आ रहा है. नाउ लेट्स हैव द मेथड बोथ इन पेरेंट एज वेल एज इन डिराइव क्लास. तो यहाँ पे बेस, तो अभी सेम मेथड है, पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी है. एक में हमने बेस मैसेज प्रिंट किया है, एक में डिराइव मैसेज प्रिंट किया है. So if I go ahead and execute, you can see the method is output is coming from the child class. Got it everybody? Clear है? अब अगर मुझे इसको भी, ये भी आउटपुट चाहिए, ये भी आउटपुट चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, वी कैन यूज पेरेंट कोलन कोलन डेमो, राइट. सो नाउ आई शुड बी एबल टू एक्सेस बोथ. तो बेस का भी आ गया, पेरेंट का भी, चाइल्ड का भी आ गया. इज इट क्लियर एवरीबडी? अभी क्लियर है सबको? दिस इज फंक्शन ओवरराइडिंग, राइट. हाँ, तो अभी गौरी का सवाल था कि इसमें अगर हम $x $y ऐसा कुछ लिख दें तो yes, Gauri, that is what your question was. ऐसे कुछ बोल रही थी ना तुम डेमो में, अगर मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग किया, मतलब पेरेंट में अलग है पैरामीटर्स और चाइल्ड में समथिंग लाइक दिस, इफ आई वांट एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस, यू कैन सी डिक्लेरेशन मस्ट बी कंपैटिबल, ऐसा मैसेज आ रहा है. सेम क्लास में होता है. हाँ, इनहेरिटेंस है तो इट इज एप्लीकेबल, राइट. तो ओवरलोडिंग तो वैसे भी नहीं है, सेम क्लास में तो वो होगा ही नहीं, वो मैंने आपको पहले ही बताया. सो दिस इज नॉट अलाउड ओनली. तो किसी भी टेक्निक से वो नहीं चलेगा. समझ में आया? ऐसे कान पकड़ो या वैसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो नहीं चलेगा. ठीक है. सो आई होप दैट इज क्लियर एवरीबॉडी. नो कंफ्यूजन नाउ एवरीबॉडी. तो अगर आपको कॉल करना है तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप
parent यूज करो कोलन कोलन डेमो ले लो ऐसा. So this is the technique that will allow us to call the parent class method as well as the child class method. Then, so till this point, if you have understood, please type U for understood. Okay. Now let's apply the same thing in our employee programmer class. So coming to the programmer class, यहाँ पर अब इसका नाम मैं चेंज करने जा रही हूँ. So I'll make it display. अब अगर हमने ऐसा किया, so when I call P1 arrow display, कौन सा डिस्प्ले कॉल हो जाएगा? प्रोग्रामर में डिस्प्ले है क्या? हाँ है, तो प्रोग्रामर का डिस्प्ले कॉल हो जाएगा. सो नाउ लेट मी एग्जीक्यूट प्रोग्रामर. सो विल गेट दिस टाइप ऑफ आउटपुट. तो अभी मुझे एम्प्लॉय का भी डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पेरेंट कोलन कोलन डिस्प्ले. सो एवरीबडी यहाँ तक क्लियर है? सो सी फॉर क्लियर टाइप करो. Now on the similar lines, let me create the other two classes, sales manager और admin class भी हम बनाते हैं. ठीक है? So let me do a save as. So here I am going to create the sales manager class and let's have here incentive. तो कंस्ट्रक्टर में अभी मुझे इंसेंटिव लेना पड़ेगा. And in the display segment we'll have here incentive. ठीक है, सिंपल, बस वो क्लास ही हमने चेंज किया और एट्रीब्यूट्स थोड़े से चेंज किया. इंसेंटिव. So now we will be creating object of sales manager. So this is just for the testing purpose. I am now testing the sales manager class. So I got the output as employee ID, Pratham, basic and incentive. ये अपना sales manager class हो गया. Now let's go ahead and do a save as here. And now I am going for the admin class. So here we have commission और जो ऑब्जेक्ट अपना बनेगा वो किसका बनेगा? एडमिन का बनेगा. So rest everything will remain the same. तो अब किसको हम create करेंगे? एडमिन को create करें. So we just did a testing. We have the 3 classes ready with us. All of you fine till this point? यहाँ तक clear है सबको? Sorry. Now, so what we have done, अभी हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास था, अभी हमने प्रोग्रामर बना दिया, हमने एडमिन भी बना दिया और हमने सेल्स मैनेजर भी बना दिया. So here we have
ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, सब जगह डिस्प्ले डिस्प्ले लिख दिया, मतलब यहाँ पे भी अपने पास डिस्प्ले है, इधर भी डिस्प्ले है, इधर भी डिस्प्ले, डिस्प्ले की बाहर है ना, सब जगह डिस्प्ले। नाउ सो एवरी टाइम व्हाट वी हैव डन, हमने प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने p1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया, फिर हमने सेल्स मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया, सेल्स मैनेजर डॉट डिस्प्ले कॉल किया, फिर हमने एडमिन का ऑब्जेक्ट बनाया और एडमिन डॉट डिस्प्ले बोला। यस और नो? अब देखो, तुम एक बात सुनो, मैं तुमसे अभी क्वेश्चन पूछती हूँ, डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टाइप यू इन द चैट बॉक्स। मैं ऐसे ही बोलती हूँ ना, मैं ऐसा बोलती हूँ, अंकिता तुम टाइप करो, साक्षी तुम टाइप करो, पूर्वा तुम टाइप करो, ऐसे बोलती हूँ क्या मैं? नो। सो आई एम गिविंग अ जेनेरिक मैसेज टू एवरीबडी, सभी को मैं बोलती हूँ प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड, यस और नो? फिर तुम जब मैसेज सुनते हो मेरा, तो तुम तुम्हारे हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हो, कुछ लोग यू फॉर अंडरस्टूड टाइप करते हैं, किसी को मन किया कि बहुत अच्छे से समझ में आया तो क्या डबल सी टाइप करते हो क्रिस्टल क्लियर के लिए, है ना? सो द वे यू रिस्पॉन्ड इज डिफरेंट, यस और नो? बट द मैसेज इज सेम। सभी से मैं एक ही बात कर रही हूँ ना, ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स फॉर मी, so for all the students I am giving the same message, but the way you respond is different. This is called as polymorphism. So what is polymorphism? Single message, multiple implementation. So we have the same message, but the way it is being implemented is different. Got it? मतलब हमने अगर वो व्हीकल वाला एग्जांपल लिया, कि अगर हमारे पास, समझो, इफ आई टेक द व्हीकल एग्जांपल, कि समझो एक रोड है, ये रोड है, ओके, और रोड पे ना अलग अलग व्हीकल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाइक इज कमिंग, कार इज कमिंग, ट्रक इज कमिंग, बस इज कमिंग, ये सभी आ रहे हैं, एंड देयर इज अ ट्रैफिक सिग्नल, एंड द ट्रैफिक सिग्नल गोज रेड, तो ये रेड हो गया, रेड मतलब क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया, तो मैसेज इज स्टॉप। विल द बाइक स्टॉप? विल द कार स्टॉप? विल द ट्रक स्टॉप? विल द बस स्टॉप? यस और नो? सभी स्टॉप करेंगे, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू परफॉर्म द स्टॉप ऑपरेशन, बट कैन आई से द वे दे स्टॉप इज डिफरेंट? क्योंकि बाइक कैसे स्टॉप करेगी, बाइक के पास कुछ तो डिस्क ब्रेक मैकेनिज्म होगा स्टॉप करने के लिए, कार जो है इट्स अ लाइट वेट व्हीकल, तो उसके अंदर कुछ ऑयल फ्रिक्शन ब्रेक होगा स्टॉप करने के लिए, बस इज अ हेवी व्हीकल, तो उसमें कुछ हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक्स होंगे, और जो अपना ट्रक है उसमें कुछ तो एयर प्रेशर ब्रेक्स होंगे, ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग द स्टॉप ऑपरेशन, बट द वे दे रिस्पॉन्ड टू द मैसेज इज डिफरेंट। हर कोई कर तो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहा है, दैट इज अ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? So now what I'm going to do is I'll go to the programmer and let me just comment this part. सेल्स मैनेजर में भी ये वाला पार्ट हम कमेंट कर देते हैं, ये सब मुझे रन नहीं करना है, एंड एडमिन में भी हम इसको कमेंट कर देते हैं। So now I am going to create main.php, and here I will have to include programmer.php, बस ये लास्ट है, ये करके हम स्टॉप करेंगे, ठीक है? So we are including programmer, sales manager and admin. So now what I'm going to do is I'm going to have $p1 is equal to new programmer, then $s1 is equal to new sales manager,
dollar A1 is equal to new. All right. Now let me put them together and let's say all EMP का मैं एक array बनाती हूँ. Already we have covered the array concept. So let's have an array and inside the array let me store dollar $P1, dollar $S1, dollar $A1. Can we do this? बना सकते हैं हम ऐसा array? Because these are all employees anyways, correct? Employee के ही objects हैं, तो उसको एक array में डाल सकते हैं हम? Yes or no? Now let me apply the for each. So for each dollar all EMP as dollar E. And then I am writing dollar E arrow display. हर एक के अंदर display तो है ही. And now let me go ahead and execute main.php. I am expecting an error coming up. Let's see. There's no output. What happened? मैम main.php तो मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ 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 सॉरी सॉरी. हाँ ये रीडिक्लेरेशन का कुछ तो होता है. रिक्वायर वंस इन PHP ऐसा कुछ एक होता है. हाँ इंस्टेड ऑफ इंक्लूड नाउ आई विल यूज रिक्वायर वंस. क्योंकि अभी क्या हो रहा है जब हम इंक्लूड कर रहे हैं प्रोग्रामर डॉट PHP को, तो प्रोग्रामर डॉट PHP में भी एम्प्लॉय को हमने इंक्लूड किया है, सेल्स मैनेजर में भी एम्प्लॉय को, तो वो री इंक्लूड हो रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज इंस्टेड ऑफ दिस वी विल यूज रिक्वायर वंस, तो वो एक ही बार इंक्लूड करता है. ठीक है, because the name is already used in line 2 of which file emp.php. नहीं यहाँ पे तो ये इंक्लूड ही रहेगा. एक मिनट. हाँ so did you understand वो redeclaration error की वजह से problem आ रहा था. So now we just said okay you included only once. So can you see this is the programmer data, this is the sales manager data and this is the admin data. Fair enough everyone? ये require one समझ में आया आपको? Problem क्या हो रहा था वो समझ में आया? हमने इंक्लूड लिखा था ना, तो एम्प्लॉय क्लास बार बार इंक्लूड हो रहा था, रीडिक्लेरेशन एरर आ रहा था. सो वी कैन यूज रिक्वायर वंस टू से कि एक ही बार इसको इंक्लूड करो. अगर इंक्लूड नहीं हुआ है तो ही इंक्लूड करो, अगर ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है तो मत इंक्लूड करो. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वन? यस. सो लुक एट दिस स्टेटमेंट. In this statement, once I am getting programmer's output, second time I am getting sales manager's output, next time I am getting admin output. So can I say this is my polymorphic statement? Because it's a single message, but the way it is displaying the output is different. So this is the example of polymorphism. Fair enough, everyone? Because message is same, but the output is coming differently based on the object it is targeting. Yes? So let's stop here for today and we'll meet in the next session to continue some more discussion on OOP and we'll also start with state management. Okay? Chalo. Bye everyone. Have a nice day and take care.
ठीक है, आज का सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, प्लीज अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ओके। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन, टेक केयर।